Good afternoon, everybody. हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? A very warm welcome into our panel discussion today, our roadmap to build your own AI venture. This is me, Isha Shahid, and I'm going to be your host for today. And I hope all of you are doing great today. Are you? Great. Along with me is my co-host, also the moderator for this discussion, Ahmed Aziz. Hi, Ahmed. How are you? I'm doing great. Thanks for asking, Isha. Great. All right, so on the panel, we have two very esteemed guests, both of them very seasoned entrepreneurs themselves in the AI industry. And they are both the co-founders of Machine Learning One, which is basically an AI-focused company that revolutionizes different industries with their state-of-the-art technology. And Machine Learning One has been able to increase its employee strength from more than 200% in less than a span of 2 years. They have been to Y Combinator for their AI products, and also they have been able to raise funding of over $1 million. And I'm very glad that they are here today with us, Mr. Aleem Jamil and Mr. Daniel Chugtai. Please come on stage, sir. Assalamu alaikum, both of you. Thank you so very much for joining us today. We're really glad that you're here, and we're really humbled to share the stage with you. And all right, so we're definitely going to move towards the main topic, but I feel like let's just kickstart the conversation with a very normal discussion, right? So most of you probably are in the final semesters. Are you guys in like 7th or 8th semesters, right? So I was in the same condition a year back. I was looking and scraping through different industries, trying to figure out what do I need to do, where do I need to go, different companies, different jobs. And I was always unsure which company will understand my potential. And you guys are very lucky that you're sitting here today, because the Programmers Force is the company that understands your potential and gives you the platform, or you can say a launchpad for your AI ventures. So as we all know, that AI is not just a futuristic concept anymore, right? It is the present, it is the moment, it's what we're living in right now. It's reshaping the way we live, the way we work, and the way we interact with technology. So when I entered Programmers Force, I think Ahmed would agree with me, we literally feel ourselves immersed into this extremely dynamic landscape of AI. And I feel like AI is revolutionizing every industry right now. It's not just healthcare, it's not just compliance, it's not just financial services, it's every industry that is affected by AI, and every industry is innovating by using the AI potential, right? It's not just a small startup, it's not just an MNC. We all are trying to harness the power of AI to drive unparalleled growth and at Programmer Force to solve some of the society's most pressing challenges, right? So if you have an idea, or if you have a thought, and if you have a solution to society's most challenging problem, and you have a solution to that, I think you are at the right place, because Programmers Force is going to help you with that. So if you don't know where you're pitching ideas, this is the place, right? So we're definitely going to move ahead with the conversation, and I'm going to hand it over to Ahmed, and let's just start the conversation. Are you guys excited? Great. Because it's a very interesting topic, and I don't want you guys to, lose interest. So in between, we're going to keep asking questions and all. So if you have any questions, just note it down, and we'll ask you at the end or in the mid, all right? Thank you so much, everybody. Hope you have a really great and interesting talk. Right, Ahmed? Thank you, Isha. So हमारे साथ जो है वो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं वो हमें AI वेंचर्स के बारे में बताएंगे. हमारे को फाउंडर्स हैं जिनको प्रोग्रामर्स फोर्स ने जो है प्लेटफॉर्म दिया था. तो सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना, लीम साहब? ठीक. मैं बेसिकली लम्स से मास्टर्स किया हुआ मैंने 2018 में. आफ्टर दैट आई हैव लाइक 4-5 year experience in AI, especially 2 years in PF as well. एंड उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग वन जो है वो फाउंड की है, और एक विजन के साथ. बेसिकली विजन ये था कि AI प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है पूरी. ठीक है. तब इतना ज़्यादा अभी चैट GPT और AI का नहीं आया हुआ था, तो उसके बाद तो तकरीबन सारी इधर इंडस्ट्री जान गई है कि AI क्या होती है. और उसके बाद आपके पास काफ़ी एप्लीकेशन हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं AI के साथ.
तो इसी विजन के साथ एक कंपनी डेवलप की है और फिर हमने प्रोडक्ट खुद बनाई है, उसकी फंडिंग रेज की है मोर देन 1 मिलियन के साथ, सक्सेसफुली एग्जिट कराया है और दैट्स इट। अब वी हैव लाइक मोर देन 50-60 पीपल्स इन आवर कंपनी मशीन लर्निंग वन। तो ये अभी फॉर नाउ मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी जी एम सर प्लीज़ अपने इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने पहले इकोनॉमिक्स बैचलर्स किया था एनएससी से, बैकयार्ड से, और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करने के बाद मैंने मास्टर्स किया था डेटा साइंस में। तो मेरे लिए तो एक करियर स्विच था डेटा साइंस में आने के लिए। मास्टर्स करने के बाद फिर मैं भी अलीमो में सेम डे ही पीएफ हमने ज्वाइन किया था। वहाँ से करते करते आज हम दोनों और एक और को फाउंडर भी हमारा, हमने फिर ML1 इवेंचुअली ML1 को फाउंड की थी। तो ML1 हमने स्टार्ट की थी, इनिशियली हमारे पास 12 लोग थे। आज हमारे पास अलहमदिल्ला 50+60 की स्ट्रेंथ हो गई है, मल्टीपल डोमेन्स, और हम स्ट्रिक्टली सिर्फ AI के ऊपर काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं सिर्फ AI के ऊपर। मतलब ये वो ज़माना है जब हम लोग शुरू कर रहे थे कि किसी से कोई पूछता था क्या करते हो तो उसको समझाना इतना मुश्किल होता है, AI किसी को समझ नहीं लगती थी। हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अब सबको पता है अच्छा AI कुछ चीज़ है। ChatGPT के बाद अब सबको ही पता लग गया क्या है। तो वो एक जर्नी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से रुका नहीं जा रहा पूछने के लिए कि मैं तो एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ और मैं AI डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि एज अ बिज़नेस स्टूडेंट आपकी डिग्री मैटर करती है या डिग्री मैटर नहीं करती इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपने AI डेवलपमेंट वाली साइड पे आना है तो क्या ये चीज़ मैटर करती है डिग्री आपकी? आई थिंक अगर आपने बिजनेस साइड से करना है तो फिर आपको डिग्री करनी पड़ती है। अगर आप वैसे CS बैकग्राउंड या उस पर हो, फिर आप फर्दर मास्टर्स ना करो, आपको वो बेसिक आपकी लॉजिक बिल्डिंग बन चुकी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक अब स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑब्वियस बात है, एक डिग्री एक हद तक एक्सटेंड तक आपको हेल्प करती है, बट स्किल्स आर फार मोर वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन एज कम्पेयर टू अ डिग्री बेसिकली। सर आपको क्या लगता है कौन सी वेरियस एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम कैसे सोच सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर AI जो है फिट इन होता है? इस प्रॉब्लम के आप किस तरह प्रॉब्लम फिगर आउट करते हैं? जिस तरह लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं, आप उबर जो है वो बंद हो चुकी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन्होंने ना एक टाइम पे आके जब कोई भी किसी को भी कोई चीज़ चाहिए होती थी, कोई टैक्सी करवानी है, कुछ करवाना, उनको तो आपको रोड पे जाके जो है लोगों को इशारे देने होते थे। उससे बेहतर ये चीज़ थी कि ये फॉर्मली आप बस एक एप्लीकेशन खोलें और जाके अपनी गाड़ी जो है वो बुक करें और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। एन ड्राइव जिस तरह आया, एन ड्राइव में जो है वो नेगोशिएशन वाला पार्ट जो है वो मार्केट में दिखाया। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है कि भाई मैं 200 रुपये में जाना है, नहीं भाई 150 रुपये दूंगा। पाकिस्तान में लोग ये उन्होंने गैप फिल किया। आपको क्या लगता है कौन सी वेरियस एप्लीकेशंस हैं जो अप्लाई होती हैं और जो हम फिगर आउट कर सकते हैं, वो किस तरह फिगर आउट कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली तो 2-3 चीज़ें हैं। अगर तो आपने किसी प्रॉब्लम पे काम करना तो पहले आपने ये चेक करना है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्या आप उस प्रॉब्लम से कभी गुजरे। अब देखें, अगर उबर और क्रीम वगैरह का जो आइडिया है और इन ड्राइवर का, इनके आइडिया में फ़र्क है। 2 आइडियाज़ जो फ़र्क है वो ये है कि फॉर एग्जांपल उबर ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है कि आपने पहले जाना है अपने चौक में, उधर से जाके आपने रिक्शा वगैरह करवाना है और फिर आपने कहीं जाना है, ठीक है। अब वो एक्सेसरीज उन्होंने हमें अपने घर पे दे दिया है, वो हम सबको, हर एक बंदे को जो है ना वो इशू फेस हुआ है प्रॉब्लम का, ठीक है। अब ये हो गया, उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट गैप फैच कर ली। लेकिन अब इस तरह ही होता है, अगर आपने मार्केट फैच कर लिया तो आपको फ़ौरन इनोवेटिव रहना पड़ता है और अपने कंपैटर्स को देखना पड़ता है। अब जो इन ड्राइवर है उसने दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की। पहली प्रॉब्लम के 2 हिस्से थे, हम पहले चौक पे जाते थे, फिर हम रेट अपना खुद करते थे। अब ऊबर ने एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दूसरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जिसमें हम खुद अपना जो है ना किराया वगैरह हम फिक्स करवाते हैं। तो उन्होंने वो दूसरी प्रॉब्लम पे भी काम किया। जैसे जब 2 प्रॉब्लम इकट्ठी उन्होंने सॉल्व की हैं तो जिसकी वजह से वो मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा लेके चले गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऊबर की वैल्यूएशन अभी काफ़ी बेहतर है इन ड्राइवर से, क्योंकि उसने मार्केट क्रीम से और बाकी जगह से कैप्चर की हुई है। अब दे आर लाइक एक्वायरिंग फूड पांडा एज वेल। तो क्योंकि फ़र्स्ट आने का आपको फ़ायदा हमेशा होता है। अब उनके पास इतनी फंडिंग है कि वो बाकी एक्वायर कर लेते हैं, मे बी दे विल एक्वायर इन ड्राइवर एज वेल। तो हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट में आने का, अगर आपने रियली प्रॉब्लम देखी है
तो अगर आपने वो सोल्यूशन ले आए हैं तो उसका फ़ायदा तो आपको डेफिनेटली होगा फर्स्ट टाइम इन मार्केट में। सर इसमें तो ये बात आ गई कि हमने पहले आइडेंटिफाई करना है क्या जो हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं वो लोकल हों या फिर ग्लोबल हों। तो लोकल मार्केट एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस डिफरेंट होते हैं। एक वायबल नीश ढूंढने के लिए जिसके अंदर आपको लगता है कि ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, ये इफेक्टिव है, वो किस तरह हम फिगर आउट करते हैं, ये आप जो हैं ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। मार्केट गैप तो सबसे पहले जिसमें अलीम ने बताया था कि अगर आपने प्रॉब्लम खुद फेस की है तो आपको उस प्रॉब्लम का ज़्यादा पता है, आपको उस प्रॉब्लम की दर्द है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी किसी जानने वाले की प्रॉब्लम होगी, वो आपको बताएगा ये प्रॉब्लम है, आपके पास वो स्किल होंगे कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही चल रहे हो तो सबसे दूसरी बात ये आती है कि अगर तो दुनिया में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आपने फेस की, किसी ने भी फेस किया, उसके पेइंग यूज़र्स हैं, लोग उसके लिए अगर पैसा दे रहे हैं तो फिर वो एक वायबल बिज़नेस है। लोगों को लगता है कि एक मेरे पास आइडिया है, मैं इन्वेस्टमेंट उठा लूँगा, वो एक वायबल बिज़नेस आइडिया है। वो आइडिया नहीं है, वो आइडिया आपका तब कामयाब होगा, आपका बिज़नेस तब कामयाब होगा अगर आपके पास पेइंग यूज़र्स होंगे, अगर आपके बिज़नेस, आपके आइडिया, आपके सोल्यूशन के लिए कोई पैसा स्पेंड कर रहे हैं। सर आप कोई चीज़ ऐड करेंगे इस चीज़ के अंदर, जिस तरह मुझे लगता है कि चैट जीपीटी के अंदर जो उनका उन्होंने जिस तरह मार्केट में आया, उन्होंने मार्केट कैप्चर की है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ओपन सोर्स था। तो आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी ने किस तरह अपने जो है मार्केट कैप्चर की है। अच्छा, बेसिकली अगर चैट जीपीटी की हम केस स्टडीज़ देखें ना, तो अब चैट जीपीटी बेसिकली एक मार्केटिंग स्टंट है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बेसिकली वो मार्केटिंग स्टंट है। उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, किस वजह से? कोई डेटा साइंस की प्रोडक्ट आप बताएं, आप लोगों से सवाल है, आपको क्या लगता है कि डेटा साइंस की कोई चीज़ बनानी है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उसके लिए? तो क्या चैट जीपीटी ने एक मार्केटिंग स्टंट करके फ्री करके डेटा नहीं इकट्ठा कर लिया? अब उसके कंपैरेटर्स मैं आपको गिना देता हूँ, जेमिनाई भी है गूगल का और साथ क्लाउड भी है, ठीक है। लेकिन वो अभी भी उनकी एवेल्यूएशन या उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सके, क्योंकि चैट जीपीटी ने वो डेटा कलेक्ट कर लिया हमसे, और वो कीप ऑन इम्प्रूविंग। इफ़ यू नो दैट दे आर लाइक इम्प्रूविंग एवरी 15 days, दे आर इम्प्रूविंग देयर मॉडल, ठीक है। तो अब वो हर 15 दिन के ऊपर वो कर रहे हैं। और दूसरा, उनके पास है इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी, क्योंकि अभी राइट नाउ जिस सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर वो चल रहा है ना, सिर्फ उसकी कंजप्शन के ऊपर वो 1-1.5 साल में बैंकरप्ट हो सकते हैं। लेकिन उनकी क्या विज़न है? उनका ये विज़न है कि हम पूरी मार्केट पहले कैप्चर करें और फिर हम जो है ना बाकी यूजेज पे ऊपर लेके हैं। अभी पेइंग कस्टमर चैट जीपीटी के बहुत कम है बेनिस्बत, आपको पता होगा, आप सारे फ्री यूज़ करें, कोई पे कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है जब कोई चीज़ फ्री होती है तो इसका मतलब वो आपका डाटा ले रहे हैं या आप उसकी बेसिकली डेटा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दे आर यूजिंग देयर योर डाटा, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर मॉडल्स। अब यही एग्जांपल्स जो है ना, बेसिकली मुझे जो लगता है वो चैट जीपीटी ने एग्जांपल लिए जस्ट लाइक द गूगल मैप, ठीक है। आपको पता होगा गूगल मैप शुरू में बिल्कुल फ्री था, उन्होंने 5-1 साल हमसे अनलिमिटेड डाटा लिए, फ्री एप्लीकेशन में आप लोग आ रहे हैं गूगल मैप। हर एप्लीकेशन, हत्ता कि एप्पल वगैरह ने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की हुई है फ्री, दे हैव द फंडिंग। अब उन्होंने एकदम से कर दिया पे। अब इन ड्राइवर से लेके ऊबर से लेके सब यूज़ कर रहे हैं गूगल मैप्स को, और देइंग पेइंग हैवी फॉर दैट, ठीक है। हर कॉल पे उनको पैसे जा रहे हैं, हर एपीआई कॉल पे। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चाइना में जब ऊबर क्रीम वगैरह गई थी ना, उधर एक पुराना मुझे नाम भूल गया, उनके एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर था, ठीक है। उनकी पहली राइड शेयरिंग चली थी, उसके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। उसने क्या किया, जैसे ही ऊबर क्रीम आई है ना, उसने अपनी सारी राइड्स फ्री कर दी। उसने कहा लेट्स सी, देखते हैं कौन मेरा कब तक कंपटीशन करेगा, कोई इतना बर्न रेट तो इतना ज़्यादा नहीं ना दे सकता। तो अब उसने कितने महीने फ्री राइड्स दिए हैं कि मेरा यूज़र जो है ना वो जाए ना, क्योंकि यूज़र, पेइंग यूज़र जो है ना आपकी एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके यूज़र्स हैं, अब उनको उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि उसने डेटा एनालिसिस करके अपना निकाला हुआ था कि ऊबर किस तरह आके आपके यूज़र लेती है, ठीक है। उसको पता है कि कस्टमर चर्न मेरा करेगा, उससे पहले ही, वो चर्न करने से पहले ही उसने क्या किया है, अवॉइडेशन जो कहते हैं वो लेके आए, अवॉइडेशन पॉलिसी के उनको तकरीबन फ्री पॉलिसी सबको दे दी हैं, तो ऊबर खुद ही उधर से वापस आ गया। I really want to add one thing here. I just read this one quote. It was like, when something is free, you are the product. And it's actually very true that they are trying to generate data out of us and then use it in their success and everything.
That's really interesting. ये बेसिकली मैंने बताना था। मैंने बिजनेस स्टडीज़ की हुई है। मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो AI का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हर फील्ड के अंदर, जैसा ईशा ने मेंशन किया था कि सिर्फ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिनटेक, रेगटेक के अंदर, इन सब के अंदर आपको AI की ज़रूरत नहीं है, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर भी ज़रूरत है। मैं अगर बात करूँ, मैंने मेटावर्स पे काम किया था, तो मुझे मेटावर्स पे काम करने के लिए 30 से 40 मिनट्स की रेंडर्स निकालने होते थे। मैं सिर्फ कैमरा ऑन करता था, AI टूल था वो यूज़ करता था, पिक्चर ली एक ग्रे स्ट्रक्चर की, वो उसके रेंडर्स निकाला था विद इन सेकेंड्स। और यही सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा प्रपोजल लेके मैं BNU वालों के पास गया था और उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि हाँ AI टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इफेक्टिव भी हैं। मेरे ख्याल से सर आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, AI में अगर आपने अप टू डेट रहना है तो आपको डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा। डॉक्टर्स को भी हर रोज़ अप टू डेट रहना पड़ता है। जो 20 साल पहले की डॉक्टर जिसने डिग्री की है वो अब चेंज हो चुकी है। AI में जैसे हम दोनों ने 2017 में की थी, 2017 में जो हमें पढ़ाया गया था और आज जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्जन्स आ गए। हगिंग फेस खोलो आप, उसमें तो पता नहीं क्या कितने को मॉडल्स आपको आ जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर फील होता होगा कि यार मुझे नहीं आता। इस डर से बस निकलना है। क्या आपको नहीं आता तो सब ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। इंटरनेट आपके पास है, ChatGPT अब तो आ गया, अब तो सब कुछ इतना आसान हो चुका है। So how do you think if someone who does not have a CS degree or IT background, just by learning initial skills or the basic skills, how far can they excel than the person who has an IT skill or the person who has CS background? I give you an example. We have a person, a resource with us who had a finance background, who was working in the financial industry as well. वो बकायदा एक accountant था. And he also came through PF platform. PF के होते ही वो आज हमारे साथ भी हैं. And he is now a lead data scientist in one of the leading products. Without And a CS without a CS degree, without any formal CS education. सर एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे आई? मतलब मैं अगर बात करूँ, मैंने अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास आई गेस प्लान भी है, बट मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो वो फंडिंग कैसे मिलती है अगर आपने लोकल या ग्लोबल मार्केट को कट करना है? अच्छा सवाल है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हुए फंडिंग कैसे मिलनी है। सिंपल सा एक चीज़ है, आप ये एक सिंपल बिज़नेस, नॉर्मल कोई भी बिज़नेस ले लो या स्टार्टअप ले लो, आपने किसी के पास जाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी शेयर दे दो, आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपने उसको कन्विंस करना है कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बेशक 1 रुपया ले लो, आप बेशक 100 मिलियन ले लो, आप उसको किस तरह कन्विंस करोगे कि भाई आपको इसके बदले इतना X मिलेगा? वो आपने किस तरह शो बनाने? पेइंग यूज़र्स हैं, उसको भी तसल्ली होगी, उसको भी पता होगा कि हाँ ये इस कंपनी में इतनी वर्थ है, इतना दम है, इतना पोटेंशियल है कि ये मुझे रिटर्न दे सकता है। Simple सा। Now that we're talking about AI, like I mentioned in the introduction that you went to Y Combinator. Do you want to add something, your experience? Because everybody's sitting here. One day they will have their own startups and they'll need funding for it. तो Y Combinator में जाने के लिए क्या process है, किस तरह? Yes. So Y Combinator में आजकल तो जैसा सबको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स भी जा रहे हैं। लगता होगा कि भी इंडियन की मोनोपोली है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आप लोग वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, मतलब रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कोई $300 मिलियन की जंप आई है सिर्फ 1 मंथ में IT एक्सपोर्ट्स में। मतलब वर्ल्ड लेवल काम हो रहा है, यही यूनिवर्सिटी, यही बच्चे, यही लोग कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि भाई हम लोग वर्ल्ड को कम्पीट नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी आइडिया, बेशक लोकल है, बेशक ग्लोबल है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, वहाँ पे इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली में वो बैठे हुए एक्सपर्ट्स आपको गाइड करने के लिए। और Y Combinator तो एक चैनल है, मल्टीपल चैनल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाओ, अपना आइडिया प्रेजेंट करो, ज़्यादा क्या फेल हो जाओगे, 1 दफ़ा हो जाओगे, 2 दफ़ा हो जाओगे, 3 दफ़ा हो जाओगे। फेलियर नहीं होता, वो आपको सिखाता है कि अच्छा एक इन्वेस्टर के पास, कोई भी किसी भी एक्सेलरेटर के पास जाते हो, आइडिया पेश करते हो, आपको फीडबैक देगा कि यार आप में ये चीज़ कमी है। उसको आपने फीडबैक वाकई लेना है, आपने ये नहीं उसको ना नहीं समझना, उसको वाकई समझो क्या वो क्या कह रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक स्पेस में होते हैं, उनको पता होता है स्पेस का,
उनके पास जाओ, उनसे पूछो, वो आपको बोल देंगे आपके पास पेइंग यूज़र नहीं है, आप वाकई थोड़ी सी स्ट्रगल करो पेइंग यूज़र्स तक, फिर आप और इम्प्रूव करो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लो और एंड देन गो बैक। उसके पास नहीं, किसी और के पास चले जाओ, दुनिया में बहुत लोग हैं। अच्छा, बेसिकली ये है कि सबसे पहले अगर आपने स्टार्टअप लेना है ना, तो हमारी एक मिथ है कि आपके पास एक दिन आइडिया आएगा और लोग आपको करोड़ों रुपया देने लग जाएंगे। तो ऐसा, ये मिथ मैं बेसिकली ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ये मिथ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टू गेट अ फंडिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट जॉब। और बेसिकली क्या चीज़ है कि एक तो आइडिया के साथ जितने भी मैंने स्टार्टअप देखे ना जिनको फंडिंग मिली है, पहले तो ये था कि उनके पास जो इन्वेस्टर है वो देखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपके पास दर्द है कि नहीं है, या वाकई मतलब उस प्रॉब्लम से आप गुजरे और उसको लेके आप कितना डेडिकेटेड हो। ठीक है, अब मैं 2-3 स्टार्टअप्स को जानता हूँ। ठीक है, ये माई टीम है, इफ़ यू डोंट नो, दिस यंग बंदा है जिसने स्टार्टअप खोला है। उसने स्टार्टअप इसलिए खोला है कि अब हमारी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, खोखे हो गए, या देहात में जो करियाने के स्टोर्स होते हैं उनको अगर लोन लेना है या उन्होंने जाना है तो वो बैंक वाले उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उनकी बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री वो निकाल रहा है कि उनका नहीं पता कि यार वो कितने रिलायबल है। एक प्रॉब्लम थी, एग्जिस्ट करती थी, उसने सॉल्व की। एक और बंदा है जो एडटेक का स्टार्टअप कर रहा है, उसको भी अच्छी फंडिंग मिली है। अब उसने वो क्या कर रहा है, उसका है एडटेक स्टार्टअप। ठीक है, उसका क्या था मसला, उसका ये था कि उसने रोज़ वो 3-4 बसें चेंज करके जाता था अपने गांव से पढ़ने, क्योंकि उनके गांव में नेट नहीं है। उसने अब वो एडटेक को ले आया है मोबाइल में और विदाउट इंटरनेट। ये अब उसका एक प्रॉब्लम है। हमें भी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्रॉब्लम ये फेस हुई हो, तो वो उस प्रॉब्लम पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पेन होना चाहिए, और मेन चीज़ ये है कि अच्छी टीम बनाएं, उसके ऊपर मेहनत करें। ठीक है, 2-3 साल आपने मेहनत करनी है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अच्छी तरह प्रोडक्ट बनाएं और जितनी पिच हो सकती है हमारे, मैंने ज़िंदगी में मेरे ख्याल में 30-40 शायद पिच में गया हूँ मैंने किया है। आपको आपकी बेइज्जती भी होगी, आपको वो सारा उनका, अगर वो जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं वो आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो बंदा जो इधर बैठा हुआ है उसका 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जो भी चीज़ें आपको की हैं आपने वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करनी है, फिर आप दोबारा स्टार्ट वाकई आप इम्प्रूव करें। ये नहीं कि बस हर एक को रैंडमली अप्रोच करिए। तो और मेन चीज़ ये है कि अगर आपने पेइंग यूज़र नहीं ना लाने तो कम से कम यूज़र तो लाए ना। अब इसमें जोमेटो वाले की एग्जांपल है, जो इंडिया वाला है, वो कह रहा था यार मैं ऑफिस में आता था, ऑफिस में ब्रेक होती थी, हम सब ने कुछ खाना होता था, हम ढूंढ रहे होते थे नेट पे जाके मेन्यूज़, हर एक क्या खाएं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। कहते लेट्स डोमेन बाय की उसने सारे मेन्यू उठा के सिंपल सी एक PHP की मेरे ख्याल में उसने वेबसाइट बनाई गंदी सी, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेन्यू शो होते थे। अब उसके ऊपर जब उन्होंने ट्रैफिक चेक की 2 हफ्ते में ही, तो तकरीबन उसके सारा ऑफिस वो यूज़ कर रहा। तो रियली प्रॉब्लम एक सॉल्व की है, लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। जब यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर उसने उससे स्केल अप किया। उसने कहा इस इन्वेस्टमेंट पे आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे तो आपको जवानी लगेगी, 2 चीज़ें, क्यों जवानी भी आपका पैसे ही। उसने इतना ज़्यादा उसके ऊपर उसने फिर लगाया, और आज अब जाके वो प्रॉफिटेबल हुआ है जोमेटो जाके काफ़ी ईयर्स बाद, लेकिन उसने पूरी इंडियन मार्केट कैप्चर की हुई है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं जिस पे हमने फोकस करना। Okay, so how important do you think the pain has to be personal? Like you said ना कि आपको personal pain है, अगर आप खुद उस चीज़ से suffer कर रहे हो. How about the other people who do not have any personal pain but they see other people suffering? So do you think that the person who has, suffered itself would work more harder for it than the person who has not? मेरे ख्याल में तो इसकी एग्जांपल मैं शायद ज़्यादा बेहतर दे सकता हूँ। जो मैंने प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह वो पेन किस तरह है उसकी मेरी। ये ज़्यादातर लड़कियों को टच करेगी या मेल्स जिनकी माएँ बहनें ऊबर वगैरह यूज़ करती हैं। अब मैं लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और उधर हमारी सारी कोलीग में उसमें बात कंफर्म थी कि हमने इन ड्राइवर वगैरह यूज़ नहीं करनी बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ़। उनके साथ 2-3 दफ़ा जो है ना वो हादसात हुए हुए हैं, राइट। अब मेरी मदर वो ट्रैवल कर रही थी और आपको पता है अक्सर ऊबर पे जो बंदा शोर होता है वो कोई और है और जब वो आता है तो वो कोई और होता है, ठीक है। अब वो आ गई हैं, मैंने अब वो बैठी हैं और उसके बाद उन्हें जिस एरिया में जाना था दरमियान में 2-3 उधर सिग्नल्स नहीं आते और मेरी कांस्टेंट वो टेंशन है कि अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब एक सिंपल अगर फीचर हो कि वो वेरीफाई कर लें कि ड्राइवर वो है कि नहीं है तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती है। तो इसके ऊपर मैंने फेशियल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया कि अब वो हर ड्राइवर जो है फॉर एग्जांपल वो अगर एक दफ़ा
अपनी वेरीफाई करवा लेगा कि वो है कि नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस तरह बेसिकली अगर आपकी पेन हो तो उसके ऊपर बेसिकली ये है कि आप ना 100% अपना लगा सकते हैं अगर वो आपकी पेन है, जो मुझे लगता है। Also, the market was very big as well because I use Uber personally and driver personally. तो मेरा basic concern यही होता है कि is it safe? You know, my family behind me, they are thinking the same thing कि यार मेरी बच्ची आज जा रही है, so is it safe for her to travel this far alone? So आपने वो एक untouched market को touch भी किया and obviously you excelled in it. So yeah, that's very important and that was a really good discovery and initiative. सर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप रिलेट कर सकते हैं किसी की सक्सेस स्टोरी पीएफ के अंदर, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? दो स्टोरीज आती हैं मेरे पास जो दिमाग में भी फ़ौरन आती हैं। एक तो मैं आज भी मैंने आपको बताई थी फाइनेंस वाली, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होके लीड डेटा साइंटिस्ट बन गए प्रोडक्ट का। एक और हैं जो जिन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, वो एक फ़ास्ट फूड चेन में काम करते थे। वो पीएफ की ट्रेनिंग बैच में आए, वहाँ से एक्सेल करते आज वो लीड एमएल ऑप्स हैं। आई थिंक लीड एमएल ऑप्स शायद यूनिवर्सिटीज़ में अभी पढ़ाते भी नहीं होंगे पाकिस्तान में। तो वहाँ से वहाँ का सफ़र कायदा वो पीएफ की ट्रेनिंग से होते करते कहाँ वो ऑब्वियस बात है, उसकी खुद मेहनत भी बहुत है, प्लेटफॉर्म भी मिलता है, ये सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है। आपको कोई आपके पास सारी इंटरनेट की किताबें भी रख दो, आपने खुद नहीं पढ़ना तो क्या होगा। Also, what do you think are the misconceptions associated with AI? जैसे हम बहुत common misconceptions सुनते हैं कि AI would take over humans. So what do you have to say about that? मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी यही है कि भाई AI सबकी वही it would take over the jobs. I don't think AI would take over jobs. I think AI would create new jobs. Prompt engineer पहले 3 साल पहले नहीं होता था, एक prompt engineer की एक आ गई। ML ops 5-10 साल पहले शायद नहीं होता हो। तो I think AI is creating more jobs and it's helping automate things जो automate हो सकते हैं, which is creating efficiency. So it's basically reducing inefficiency, not necessarily कि वो jobs खा के ही वो होगा। I think it's creating more efficiency rather than. But I think it's also very important कि now that AI is here, so the person who has the skills related to AI would be preferred more than the person who does not have skills of AI. So it's not decreasing the jobs, it's just giving the jobs to the right people who know how to make the work efficient as well. I think इसमें यही है कि आपको अपने आप को किस आप सेल कर सकते हो। AI tools, I think there are about 1 million AI tools out there. Some regarding sales, some regarding design, some regarding marketing, some design. मतलब हर एक इंडस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट के लिए AI टूल आ चुका हुआ है। ChatGPT सबको क्रॉस के लिए सब यूज़ होता है। कौन किसको कितनी अच्छी तरह यूज़ कर सकता है, AI और नो AI, आप एफिशिएंट किस तरह हो, दैट्स द। सही आपने बोले टेक्निकल स्किल्स तो ये होने चाहिए AI डेवलपमेंट के। कौन से सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कौन से आपको इन्हांस करने चाहिए अपने या बढ़ाने चाहिए, अगर आपको नहीं आते तो सीखने चाहिए? कौन से सॉफ्ट स्किल होने चाहिए अदर देन टेक्निकल स्किल्स? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, और ये काफ़ी जेनेरिक क्लीशेड आंसर लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन आपको अगर किसी की बात समझ आ रही है और आप किसी को बात समझा सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेक्निकली लोग फिर वो टेक्निकल साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं, दे डोंट फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग इन बेटर। वो अगर आपको समझ लग रही है ना कि अगले बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने अगले को समझा दिया कि ये इस तरह काम कर रहा है, वो एक काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। बड़ी बेसिक्स हैं जो मैंने देखी हैं। हम लोग बैचलर्स में होते हैं, हमें लग रहा होता है एक्सेल क्या करेंगे हमारी लाइफ में। एक्सेल ही अच्छा आना, एक्सेल का कोर्स मेरे ख्याल में बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी है। आपको फ़िल्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगानी चाहिए। आप बेसिक डेटा एनालिसिस एक्सेल से ही करते हो, तो एक्सेल हम समझते हैं कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। एक एक्सेल, एक हमारा कोर्स होता है प्रेजेंटेशन का, तो हम वो गुजार रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्टअप करना है तो मेन प्रेजेंटेशन ही देखनी है। आपने जो मर्ज़ी चीज़ अच्छी बना ली है, लेकिन आप अगर लोगों को बता ही नहीं सकते कि वो चीज़ मेरी अच्छी है, वो नहीं बिकनी बेसिकली। तो इसके बाद हम इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसको हम समझते हैं कोई वो एबिलिटी नहीं है। वो इन द एंड ये सारी इनहेबिट हो के जितने आपने पंगे फॉर एग्जांपल लिए हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपकी कोई ना कोई स्किल्स पॉलिश हो रही है। और जो आपका सब्जेक्ट आपके लिए बनाया हुआ है ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे से पूछा था कि यार ये HCI का क्या काम है,
ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा? मैंने कहा यार अगर तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ये ठीक नहीं ना हुआ फ्यूचर में तो आपकी कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करेगा। तो उसको तो मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ाया है इस सब्जेक्ट में। और असल में आपका कोर्स अच्छा नहीं होता, आप उसमें चेक करें कि बाकी गोरे उस कोर्स को किस तरह ले रहे हैं, इंटरनेशनली इस कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जितने एक एक कोर्स है ना वो इधर आके आपके ना वही बन रहे हैं, आप ही बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना दी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगा के, लेकिन अब वो यूज़ ही नहीं कर सकते। आपको समझा रहे हैं तो आप क्लिक्स ही इतने ज़्यादा कर रहे हो तो यूज़र ने अगली दफ़ा नहीं आना जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ हो। तो यूज़र एक्सपीरियंस अब वो एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपकी इम्प्रूव हो रही है। प्रेजेंटेशन स्किल, आपने पिच करनी है, इन्वेस्टर से मिलना है, अपने लीड से बात करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट। एक्सेल, सारा डाटा शुरू में जब मर्जी, आज भी 6 साल हो गए एक्सेल में ही आता है हमारा, एक्सेल में ही हमने देखना होता है। मॉडल आपने देखने हैं, कौन सा थ्रेशोल्ड आपने फिक्स करना है, आपने एक्सेल से ही देखना है कि कौन से पे जाके मैंने थ्रेशोल्ड फिक्स करना है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं मैंने आज देखने हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, कौन से नहीं सही, कौन से काम करें, कौन से नहीं करें। एक्सेल हर चीज़ ज़िंदगी में वो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आज तक हमने वो ही नहीं सीखी। So we talked about untapped market, we talked about personal pain. This brings us the entire topic towards teamwork. How important is the team when you're building your venture? What do you think about that? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का नाम ही टीम होता है, द कंपनी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आपके ग्रुप ऑफ पीपल आपकी टीम के साथ आपका माइंड सिंक नहीं करता, वो आपको, आप उनके साथ नहीं चल सकते, वो आपके साथ नहीं चल सकते, तो आई डोंट थिंक योर कंपनी वुड बी सक्सेसफुल वन। तो टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्किल्स आ जाते हैं, इंटरनेट बड़ा पड़ा हुआ है, अगेन आपकी मेहनत सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट टीम इज़ द Exactly. Like इट्स लाइक अ कार, ठीक है ना। अगर सबसे पहले तो आप अगर किसी के साथ मिलके एआई वेंचर कर रहे हो तो आपका दिमाग एक सिंक में चलना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सिंक होना चाहिए आप, मतलब सारे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक भी बैकवर्ड हो तो गाड़ी नहीं चलेगी सही, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होती है उसके साथ, अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपनी ग्रो करनी है तो को फाउंडर्स के साथ भी कभी ज़िंदगी में एक या दो होंगे, कभी भी नहीं चलेगी। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई एम्प्लॉयज़ रखना है। तो आप कोशिश करें कि एम्प्लॉयज़ वो रखें जिनको वाकई दर्द हो रहा हो और आपको उनका दर्द हो। जब एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, जैसे आज मशीन लर्निंग वन अगर कामयाब है, हमने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, तो मैं तो क्रेडिट अपने ऊपर आज तक नहीं लिया। ये सारे मेरे बच्चे हैं जो बॉयज़ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी मसले हैं सारे आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में इतने मसले आते हैं कि आपको ज़िंदगी में ना ज़रूरत पड़ती है लोगों की, तो फिर वो लोग वो होने चाहिए जिनकी आप कदर करो और वो आपकी कदर करें। तो ये it's really correlated, right? Okay, if there's a company and there are different departments, as I said, marketing, sales, tech. If tech is making something, it's not on the website, they cannot market it. If it's not on the website, sales cannot sell it. So I think everything is really correlated, and you need to be in sync with every department and every employee to make any venture a success. सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे से पहले पूछा था कि हमारे से काफ़ी 7-8 सेमेस्टर्स के बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? बिकॉज अगर हम डॉलर्स में कमाते हैं, हमें टेक्निकली ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए या फिर हमें पाकिस्तान में बैठ के हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम आराम से बैठ के यहाँ पे काम कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं? पर्सनली आई थिंक आप बेशक बाहर जाओ, बेशक यहाँ रहो, इकॉनमी को बूस्ट किस तरह मिलेगा? इकॉनमी को बूस्ट तरह मिलेगा कि बाहर से डॉलर्स अगर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिस तरह मर्जी हो रहा है, फ्रीलांस भी कर रहे हैं लोग फॉरेक्स भी बना रहे हैं, लोग बाहर जाके रेमिटेंस भी भेज रहे हैं, वट एवर द मीन्स इज़। इकॉनमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई यही एक तरीका है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, आपके पास डॉलर ज़्यादा आते हैं। ये दैट्स सबसे बेहतर बेसिकली ये है कि बाहर जाएंगे तो डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर्स ही आपने खर्च करने हैं। बेसिकली इधर है कि ये कि आप कोई इस तरह का एआई वेंचर बनाएं कि डॉलर्स आ रहे हैं और आप रुपीज़ में खर्च कर रहे हैं। तो वैन एवर डॉलर्स और रुपीज़ जितना मर्जी आप रुपीज़ खर्च कर लेंगे, आप उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते। एक बेसिक तो है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, और अगर बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो बाहर भी जो लोग जाते हैं वो फिर आखिर में टीम इधर ही बिल्ड करते हैं पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि अच्छे रिसोर्स रुपीज़ में मिल रहे हैं, वही बात है डॉलर्स एंड रुपीज़ वाला सी। तो बेसिकली इधर आप इजीली मिल सकते हो, आपके दोस्त हैं, अगर आपने वेंचर बनाना है, आप किसी ना किसी को जानते होगे, आप इजीली कुछ ना कुछ किसी के साथ मिलकर कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। इस तरह बाहर नहीं आपको मिलनी, ना वो आपको ये वाली दोस्तियाँ मिलनी है, ना ये वाली आपको कल्चर मिलना है। ये एक बेसिक। तो सर आपको पीएफ ने क्या प्लेटफॉर्म दिया? पीएफ के कौन से रिसोर्सेज थे जिसने आपके जो स्टार्टअप था उसको बूस्ट किया? पीएफ का क्या रोल था?
आपके स्टार्टअप के अंदर? Did PF prove itself to be a launch pad for your startup, if you want to share? बेसिकली अगर मैं जाऊँ, बेसिकली ये चीज़ है कि यार लर्निंग जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने भी प्रोडक्ट बनाई है तो हमने प्रोडक्ट में काम किए, ठीक है। अब हमने खुद प्रोडक्ट बनाई, अब ये बेसिकली इधर है कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस जो मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इधर आपको टफ़ जॉब्स मिलती हैं, टफ़ जॉब्स आपने करनी है। ये एक फ़ायदा होता है कि आप नॉलेज करते वो स्किल्स अपनी, क्योंकि यही चीज़ आपने क्योंकि बाकी सर्विस वाली कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है, अगर आपने प्रोडक्ट में काम करना है तो फिर प्रोडक्ट वाली जो है ना वो एक साइकिल से आपको गुजरना चाहिए कि प्रोडक्ट किस तरह चलती है। Exactly, there are like designated companies for everything. Also, how important do you think are the training sessions? For in PF, we actually really focus on the training sessions of the new employees. What role does that play in making your AI venture success or nourishing your idea or thoughts? यार मुझे वो एक एग्जांपल बता रहे थे कि एक बच्चा आया था जो जिसको हमने अकाउंटिंग फाइनेंस वाली साइड पर ले गया था। आप वो प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे? Exactly. ठीक है। जो सक्सेस स्टोरीज़ की बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल में एक दो स्टोरीज दानियल ने बता दी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये ट्रेनिंग सेशंस जिधर भी हों, पीएफ में होते हैं, बाकी हर जगह होते हैं, वो बेसिकली एक काम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में कुछ और हो रहा है, हम पढ़ के कुछ और आ रहे हैं, वो एक गैप है बहुत ज़्यादा, वो गैप हम कवर नहीं कर पा रहे। तो वो बेसिकली गैप जो कवर होता है ना, क्योंकि आप जो मर्ज़ी बुक्स पढ़ लें, जो मर्ज़ी स्किल्स सीख लें, एक इकट्ठे काम करना, 2 बंदों ने काम करना है, 3 बंदों ने काम करना है, 5 बंदों ने काम करना है, तो वो एक डिफरेंट होता है। ट्रेनिंग सेशन में एक तो आपका गैप कवर होता है, ठीक है। उसका आप क्योंकि जो स्किल्स आपने सीखी हैं वो आपने किस तरह लगानी है और मिल के किस तरह काम करना है, राइट। और ये चीज़ आपकी आगे जाके बूम होती है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया ट्रेनिंग बैच का कि आपने जो भी पढ़ लिया वो आप अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें ना। वो आके जब करते हैं तो वो फिर आप एक बेशक आप अपना वेंचर बनाएं, बेशक आप जितना मर्जी, वो आपकी बेसिक्स कवरिंग जो है वो मेरे ख्याल में अभी भी कवर नहीं हो रही। और मैं अभी पैनल टॉक में भी एक गया था जिसमें फास्ट यूएमटी वगैरह सारे आए हुए थे, और उनसे यही हमारा चल रहा था कि किस तरह हम ये कम कर सकते हैं जो गैप आ रहा है। Exactly. I would like to share my example, if I may. I was from psychology background when I entered PF, and I had no prior experience. Now I'm working in sales, and I had this entire training session with one of our CEOs, and it actually told me so much about the sales background, even though I had no prior experience in it. And it actually filled all the gaps. It actually made me aware to all the AI tools that we need in sales. And today I'm doing very good at my job. I think PF training sessions are very important, and actually they teach you a lot of things, even no matter what your background is. It's just your skill set. If you're open to learning and if you're open to opportunities, it's a great platform for you. ठीक है, जैसे कि बताया ईशा ने, इसी तरह एग्जांपल एक दानियल ने भी दी है कि अकाउंट्स वाला था। एक सेशन मैंने खुद जो है ना वो लीड किया है। अब उसमें फॉर एग्जांपल मैंने क्या देखा, टीम बिल्डिंग, बेशक मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ या एम्प्लॉयर हूँ, मैंने हमेशा ही जो है ना फोकस किया है कि टीम किस तरह बन सकती है और टीम में क्या की फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा थिंकिंग और प्रोसेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इनपुट दे रहा है, कोई डेडिकेशन शो कर रहा है, वो बंदा आगे कामयाब होगा। और अगर कोई बेसिकली पेन ले रहा है कि नहीं ले रहा। आई हैव लाइक एक बंदा था जो बिल्कुल डेबिट क्रेडिट वो करता होता था करियाने की स्टोर में। उसने मुझे बताया कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अलीम भाई और मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, ट्रेनिंग सेशन में चल रहा है। अब फर्स्ट असेसमेंट में ही गॉट 0 मार्क्स। अब आफ्टर 2 वीक्स हुई एंड ही आफ्टर इन 20 आउट ऑफ 20 ही स्टिल गॉट 5 मार्क्स। बट जो मैंने चीज़ देखी है कि वो 0 से 5 पे किस तरह गया है, जो डेडिकेशन, और मैंने उसको वैसे देखा कि क्या रवैया है, और तब मैंने चूज़ किया था कि ये कहीं ना कहीं जाएगा बंदा, ठीक है। अगर आप किसी बंदे की डेडिकेशन नहीं तोड़ सकते ना, तो फिर वो बंदा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेन चीज़ होती है आपकी डेडिकेशन। वो मैंने डेडिकेशन चेक की, इवन दो के उसने आगे जाके स्टिल आफ्टर 3 मंथ्स भी वो उधर नहीं था जिधर बाकी लोग हैं, लेकिन उसको टाइम लगा, 1 ईयर लगा, लेकिन आज वो बाकियों से बहुत बेहतर बन गया। ये एक सक्सेस स्टोरीज है। दूसरी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि बंदा वो ये है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमारी कंपनी में एक बंदा आया था जो DO था, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राइट। इट इज़ अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसका काम क्या है, सिर्फ टाइपिंग करना, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि अलीम भाई मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में। मैंने कहा ठीक है, आप अभी सबसे पहले तो वो जो काम कर रहा है ना उसमें उसने एक्सेल करना है। अगर तो वो DO अच्छा ना होता तो शायद वो हमारी कंपनी के साथ ही ना होता।
वो एक डी बहुत अच्छा था, ठीक है, वो डेटा एंट्री बहुत अच्छी करता था। अब उसका दिल में जज्बा उसने आया, उसने कहा अलीम भाई किस तरह मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, घर जाएँ, कोशिश करें, आपको चांस देते हैं। हमने चांस दिया, उसने आगे आके फिर थोड़ी सी कोडिंग की, उसकी गलतियाँ थी। अब मैंने कहा देखिए हम आपको आपने इनपुट देनी है, हम नहीं आपको दे रहे, क्योंकि कंपनीज ने तो काम करवाना ना अपना। वो एक्स्ट्रा 1 और 2 आवर्स वो लगा रहा है अपनी कोडिंग के ऊपर। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब वो नॉट ओनली अ प्रोग्रामर, ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल, एंड ही इज़ लीडिंग अ वेरी मच इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इन वेरी बिग कंपनी, और जो कि जिसके क्लाइंट्स मोर देन 150 कंट्रीज़ के, उसका एक मॉड्यूल वो देख रहा है। तो ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसकी डेडिकेशन है। हम हमेशा एंड देखते हैं, हम नहीं देखते वो स्टार्ट किधर से कर रहा। उसके लिए उसको 3 साल लगे हैं और उस तक पहुँचने को, और 3 साल लगातार लगे, दिन रात, सैटरडे संडे हर चीज़ लगे। तो ये आपकी डेडिकेशन है, अगर डेडिकेशन है तो आप पहुँच सकते हो, वरना कहीं भी नहीं पहुँच सकते। सो आई बिलीव प्रोग्रामर स्पोर्ट्स आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के हमारे स्पीकर्स के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कुड यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स जिसके क्वेश्चन हैं प्लीज़। Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zaid and I am doing machine learning. And my question is that how we can update it from the AI trends. Like every day there is a new trends in there. As you said, that's like a doctor field. So how we can update it with these trends, AI trends. जो डॉक्टर करते हैं, पढ़ना 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 पढ़ना, मतलब आपको अपडेट रहने के लिए आप आज कुछ शुरू करोगे, अगले हफ्ते कुछ आ जाएगा। आप फोकस रखो एक, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर विजन के ऊपर जा रहे हो, क्या आप NLP के ऊपर जा रहे हो, क्या आप LLM के ऊपर जा रहे हो, क्या आप पहले आप एक फ़ोकस रखो, क्या इस फोकस के ऊपर मैंने करना है। कंप्यूटर विजन है तो कंप्यूटर विजन पे आप ज़रा देखो कि इसमें क्या चीज़ आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मॉडल हैं, MRCNN, योलो, पता है योलो के कितने वर्जन आ गए, हमने योलो कौन से शुरू किए थे। बहुत ज़्यादा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, लेकिन अपना एक फ़ोकस रखो आप कि मैंने कंप्यूटर विजन करना है तो मैं इसके ऊपर देखूँ कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या आ रहा है। आप अगर इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपको ये भी रोज़ GPT 4.0 आ जाएगा, आपको कि अच्छा ये तो नहीं है, फिर कल को कुछ और आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये यहाँ जाना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस आपने एक जगह आप बात फोकस रखो। सर बेसिकली ये है कि अब डेटा साइंस में मल्टीपल फील्ड्स हैं, ठीक है। आपने यू कैन नॉट मास्टर ऑल, ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर विजन आ गई है, NLP आ गई है, अब उसको मॉडिफाई होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ आ गए हैं, ऑटोमेशन की तरफ आ गए हैं। 3-4 फील्ड्स हैं, आपने एक फील्ड पकड़नी है जो आपको अच्छी लग रही है, उसके जो क्रॉस है ना वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके आप बेसिक पेपर्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, सेल्फ स्टडी लाजमी करें। मैं ये कहूँगा कि कौन सा नया पेपर्स आ रहा है, आप पूरे रिसर्च पेपर बेसिक ना पढ़ें, लेकिन समरी आपको पता हो। इसके बाद फिर न्यूज़ लेटर निकालती हैं कंपनी, मशीन लर्निंग वन या PF, जितनी भी AI की कंपनीज़ हैं, उनको फॉलो करें, पेजेस को फॉलो करें। कोई नई चीज़ आ रही है, अगर उनको मेंशन हुई है, क्योंकि वो बहुत सरसरा मेंशन होगा, आपने जाके खुद उसके ऊपर स्टडी करनी है। तो स्टडी इसका कोई इजी हल नहीं, लेकिन आप एक डोमेन चूज़ कर लें, क्योंकि डेटा साइंस में भी मल्टीपल डोमेन है। इसमें एक और चीज़ सर मैं ऐड करूँगा, आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स में आपकी ग्रिप है ना ठीक ठाक, तो जितना मर्जी कंप्यूटर विजन के अगर आपकी बेसिक्स है तो आपको पता होगा अच्छा इस पेपर में ये हो रहा है, ये मॉडल में ये हो रहा है, ये लेयर ज़्यादा आई हैं, ये क्यों आई हैं, आपको उनके बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। Assalamu alaikum. Myself Muhammad Bilal. I have a question basically from AI domain, and you can say it roadmap. Like for example, AI is a vast field, and if you talk about data science, it's a field. So like if you are talking about the particular domain like data scientist, BA, ML engineer. So my question is, how to and which field you are suggesting us, and which field should I choose? Like for example, the issue is for the beginners, and the like when we select any course, like for example there is an instructor who is teaching this course, so he is most probably gonna with some other library, like he is using sklearn, and there is some other instructor, he is using TensorFlow, there is some other instructor. So there is a freshie, there is a basic like for example starter, he is confused like which domain is, if we follow some structure he is using this library, is someone using this library. So how to choose any domain and go expertise and get expertise in this field? आई थिंक आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अब अगेन मैं किसी को गाइड या वो नहीं कर सकता, मैं किसी को बोलूँ कि आपने यही करना है। आज क्या पता डेटा साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ हो, कल कुछ और आ जाए। 4 साल बाद जब वो फ्रेशी ग्रेजुएट करे तब तो कुछ और आ जाए।
तो कुछ हार्ड एंड फास्ट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। मतलब मैंने डेटा साइंटिस्ट पहले से नहीं बनना था, मैंने कुछ और बनना था, ज़िंदगी ने करते 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 यहाँ पे आ गया। तो कुछ पहले ही दिन से नहीं आपने स्ट्रक्ट करना कि यही करना है, आपको पता सारा हो। मतलब मैंने CS नहीं की थी, मैं भी डेटा साइंस में आ गया। आपने ये नहीं करना कि मैंने सिर्फ यही कोर्स उठाऊँगा तो ही मैं डेटा इंजीनियर बन पाऊँगा, अगर मैं ये कोर्स में टेंसरफ्लो नहीं करूँगा तो मैं ये नहीं कर सकूँगा। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को कभी भी, क्या मैंने ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या मैंने इवेंचुअली क्या करना। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम पता हम उस सूरत में आई एम एग्री विद इट। हम ये नहीं कह रहा कि मैं कि लाइक एक बिगिनर को नहीं पता होगा कि मैं किस में जाना है किस में जाना है, तो वो एक डेफिनेटली एक्सपर्ट से कोलैबोरेट कर कॉन्टैक्ट करेगा, वो उसको सजेस्ट करेगा ये इस फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उस सेंस में पूछना चाह रहा था। नहीं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा सवाल पूछा है इन डेप्थ का, मैं आपको इन डेप्थ में बताता हूँ। आपने कहा है कि मैं टेंसरफ्लो करूँ, पायटॉर्च करूँ, क्या करूँ। आपको पता है बेसिक मॉडल किस तरह बनता है, उसमें लेयर्स कौन सी होती हैं, ठीक है। फ्लैटन किस तरह होता है, वो पायटॉर्च का फंक्शन चेंज होगा और टेंसरफ्लो का फंक्शन चेंज होगा। अगर आप सोचते हो आप टेंसरफ्लो या केरास को रट्टा लगा के सिर्फ एक ही चीज़ को रट्टा लगा लोगे तो वो आपको कहीं फ़ायदा नहीं होगा। आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक किस तरह बनता है। एंड पे न्यूरल नेटवर्क को जाने से पहले फ्लैटन करना ही पड़ना है, उसके बाद कौन सा फंक्शन लगना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप रेलू और लीकी रेलू लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लगता किधर है और क्यों लगता है। अब बाकी लैंग्वेजेस आपने गूगल ही करनी है, अब बाकी आप लिखो ChatGPT को, वो भी लिख के आपको दे देगा। तो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी आप जिस मर्जी में जा सकते हो, अपने आप को ना रखो, लेकिन रन टाइम पे जो सब्जेक्ट में जो टीचर कह रहा है उसकी भी सुन लो। थैंक यू सर, थैंक यू। I think you really wanted to know about the leadership as well. Because if you have a mentor, if you have a role model, they can actually guide you which field do you want to go in. So I think it's very important to have the right mentor for you to decide. Do we have any more questions? Walaikum assalam. Assalamu alaikum. I really had two questions. अगर हमारे पास इतना टाइम है तो पहला तो ये कि आपने कहा कि now you guys purely work in AI products as a company. तो यही मैंने पूछना था, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया विद एन आइडिया और उसको आपने लेके चले, ठीक है। और यहाँ पे भी मतलब टोटल कन्वर्सेशन जो हमने फोकस किया है वो आइडियाज़ और उनके ऊपर है कि एक आइडिया को ग्रो करना है। और लेकिन अगर एक दूसरी तरफ से सोचा जाए, जैसे एक रेगुलर आजकल का हमारा बिजनेस क्या है सॉफ्टवेयर हाउसेस में, फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाओ, फाइवर पे अकाउंट बनाओ, उसको थोड़ा सा ग्रो करो, वेब के प्रोडक्ट्स पकड़ते लो। अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहें डेटा साइंस ये AI के ऊपर, मतलब AI वेंचर्स पे, तो हाउ डू यू डू दैट? मतलब कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, और मतलब क्या करें? बिकॉज आई हैव अ स्टार्टअप ऑफ माई ओन, मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं वो जो मैं एज सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन उसके भी क्लाइंट्स मेरे पास लिमिटेड है। आई डोंट नो हाउ टू ग्रो इट। I have a team of good people which are eventually leaving me because I don't have more projects for them to work on, और मेरे I don't have a way, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरह AI specific इस वेंचर को AI specific करूँ। इवेंचुअली मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है वापस उसी वेब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स पकड़ने पड़ रहे हैं। इस AI वेंचर को मैं फिर एक डिजिटल मार्केट पर एजेंसी भी बनाने लगा हूँ। तो इसी तरह मैं ये पूछना चाह रहा था कि AI के किन प्रोडक्ट्स हैं जो हम वेब डेवलपमेंट की तरह लेके चल सकते हैं, मतलब कि अगर हम फोकस करें उन पे, नॉट अ सिंगल आइडिया बट सेवरल आइडियाज़ जो एक एज अ सास लेके चल सके हमें से। अच्छा, बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या फ्रीलांस करना चाह रहे हैं। पहले तो ये आपने कंफर्म करना, ठीक है। अभी आप फ्रीलांस कर रहे हैं और साथ आप पूछ रहे हैं कि SaaS प्रोडक्ट्स कौन सी मैं बनाऊँ, राइट। तो मेरे ख्याल में नहीं, आप फोकस किसी एक साइड पे कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो या फ्रीलांस कर सकते हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन आई थिंक मुझे फ्रेज करना नहीं आ रहा। इट वाज मोर ऑफ के नेक्स्ट क्या किया जाए, मतलब व्हाट आर सम ऑफ कोई एग्जांपल प्रोजेक्ट्स अगर आप दे सकें जो प्रोजेक्ट्स आपने क्लाइंट के लिए किए हैं विच वर शॉर्ट टर्म, यू फिनिश देम, डिलीवर्ड देम, और उनसे यू जनरेटेड मोर वर्क इवेंचुअली, मतलब कि उस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स आते रहे जो बेसिकली रेपिटेटिव काम आप क्या कर रहे हैं AI में, AI वेंचर्स में। हम लोग तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करते हैं, हम लोग सर्विसेज के ऊपर काम नहीं करते। तो सर्विसेज के ऊपर हमारा मेन फोकस ही, क्योंकि हमारा बताया था, हमारा आइडिया ही था कि हमने AI प्रोडक्ट्स बनानी है विद द सेम पीपल जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे निकल के इधर बैठ के जो ग्लोबली हम टच करें, ग्लोबल इम्पैक्ट उसका हो। हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, एंड दीज प्रोडक्ट्स अगर इफ़ यू कुड गिव अस अ ग्रोस नंबर इन 1 year, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डू यू क्रिएट?
आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ, बट प्रोडक्ट्स तो ठीक ठाक, प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा बना के फेल भी कर देते हैं, तो रियली वो एक नंबर नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ प्रोडक्ट, अगर आपने प्रोडक्ट्स बनानी तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि एग्जिट प्लान होना चाहिए, कि या यहाँ पे जाके मैं देखूँ कि मैं पास हो रहा हूँ कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ। मैं अगर फेल हो रहा हूँ मैं बंद करूँ, वरना वो आपकी ईगो आपके साथ साथ लेके चलता रहेगा और आपका बर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने बंद भी बहुत, पता नहीं कितने ही बंद किए हमने। कोई एक्सपेरिमेंट्स होते थे, यहाँ अप्लाई किया, वहाँ किया, ये किया, नाइट्रेस भी लगते थे, सब कुछ होता था, मेहनत लगती थी, नहीं चलते बंद कर दो, मूव ऑन, नेक्स्ट चीज़, कुछ और आइडिया आ जाएगा, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी और तरह से किसी और ने बताया होगा ये प्रॉब्लम है, आपने खुद देखा है ये वाकई प्रॉब्लम है, उस पर काम करते हैं हम लोग। ये हमारा प्रोडक्ट का एक साइकिल होता था। दूसरा, अगर आपने मशवरा लेना है फ्रीलांस से, तो मैं बताऊंगा अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। जो भी पोर्टफोलियो, अगर आप फ्री हैं तो कुछ ना कुछ अपनी खुद सर्विस बना लें। आप देखेंगे मार्केट में डिमांड क्या है, वो चेक करें मार्केट में डिमांड क्या है, और अगर डिमांड है उसके लिहाज से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, पोर्टफोलियो इंप्रूव करें, कीप ऑन इम्प्रूविंग द पोर्टफोलियो। जितना आप पोर्टफोलियो इंप्रूव करेंगे उतना ही आपका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि अक्सर आपको आइडियाज़ दूसरों के आइडियाज़ से मिलते हैं, तो जैसे आप लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं और आपने हमें काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स दी ऑफ अदर पीपल जिन्होंने एक मसला देखा और सॉल्व किया। तो हम अगर इस नेटवर्किंग स्पेस में, हमारा नेटवर्क भी इतना बड़ा नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें देख सकें, क्या मतलब कि बेसिक प्लेटफॉर्म्स को तो हमें पता है, लिंक्डइन वगैरह, यहाँ पे आप एक्सपो में भी पिछले हफ्ते कोई एशिया की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आप उधर चले जाएं, बट व्हाट इज़ अ मोर एक्सेसिबल वे, या एक मतलब बिल्कुल बिगिनर ने अगर जाना हो कि वो अपना ऐसा नेटवर्क बनाए या अपने आप को इस तरह की एग्जाम्पल से सराउंड कर सके इन राइट हेयर इन होम इन पाकिस्तान, तो वो क्या करे? आई थिंक आप लिमिट नहीं, वही बात कि आप यूट्यूब खोलो, आप देखो कि इंडिया में कितना स्टार्टअप्स हैं। इंडिया को आप कॉपी नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से कल्चर सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, इकॉनमी उनकी ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, सब कुछ है, वो एक अलग बात है। अगर आप देखो, एक यूट्यूब आपका ऐसे एक प्लेटफॉर्म है कि आप देख सकते हो ये आइडिया, सेम आइडियाज़ होते हैं, कोई चल जाता है कोई नहीं चलता। वो भी डिपेंड करता है कि कौन से शहर में उनके चला था, क्यों चला था, कब चला था, उसका बैकग्राउंड क्या पता IIT का हो या कुछ और हो, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा। सेकेंडली केस स्टडीज़ इवन मैं कह रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी में चला रहा हूँ, मैं भी केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ कि अच्छा यार ये फलाना कंपनी ने उस वक्त क्या किया था। आपको एक्चुअल रियल केस एग्जांपल से आप बहुत कुछ सीखते हो कि वो फेल हुआ था या वो पास हुआ था या वो सक्सेसफुल हुआ था, वो इसने इस पॉइंट पे ये डिसीजन लिया था। माई क्वेश्चन इज़ के 2 years बैक मेरा इंटरेस्ट था गेम डेवलपमेंट के अंदर, राइट। सो आई लाइक फ्रॉम द स्टार्ट मैं गेम डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, और मतलब कि ना गेम्स वगैरह खुद सेल्फ लर्निंग के लिए बनाता था, ठीक है। एंड इवेंचुअली आई केम टू नो अबाउट डेटा साइंस, राइट, एंड आई started taking interest in it, and by the time I lost my interest in game development, but still I play games. So my question is that I do projects in data science, like I can do analysis in the COVID and a churn data set, something like that, but there is a gap inside that makes me feels like there are so many things like SQL, right, and Python, and so many other things like the libraries in the Python which are used in data analysis and data science. So this makes me feel like that I'm not satisfied with the fact that I am good at it. Still, like I had a keen good grip on game development, like that grip is not in here. So how can I be good at that, if you can answer that? अच्छा, इसको एक टर्म होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको ना हमेशा डर लगता है कि बाकी लोग मुझे पहचान जाएंगे कि यार ये बंदा फ्रॉड है, इसको कुछ नहीं आता, और ऐसा सबके साथ होता है, ये सब आप अकेले नहीं हो। मैं रिसेंटली एक मेरे ख्याल से एक गूगल की कोई एक है पाकिस्तानी डिसेंट की है, वहाँ पे सीनियर डेटा साइंटिस्ट, उसने ये टर्म मैंने पहली बार वहाँ से सुना था, वो भी फाइनेंस के बैकग्राउंड से डेटा साइंटिस्ट बन गई थी। तो ये नहीं घबराना कि मुझे नहीं आता है, बाकी को आता है तो मैं अच्छा डेटा साइंटिस्ट नहीं हूँ। आपने जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार फेल होगे, जितनी कोडिंग करोगे, आप इम्प्रूव होते रहोगे। आपको अभी नहीं आता, अभी आपको केरास नहीं आता होगा, मैटप्लॉटलिब नहीं आता होगा, बेसिक एक्सप्रेशन नहीं आता होगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा आपको। आप अगले हफ्ते पे किसी और चीज़ की टेंशन ले रहे होगे। तो वही बात है, लर्निंग कभी भी नहीं रुकेगी, हमेशा होती रहेगी। ये कि अगर आपको गेम डेवलपमेंट में वाकई मज़ा आ रहा है तो दे ऑब्सोलीट नहीं हुई, ठीक है। आई हैव माई फ्रेंड्स जिनका गेम स्टार्टअप्स भी हैं,
पाकिस्तानी फर्स्ट मेटावर्स भी बनाई है उन्होंने, ठीक है, दे आर माई फेलोज़। और तो जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना, अगर आपको वाकई अच्छी लग रही है तो आप वही करें मेरे ख्याल। तो आस्ते से लोगों को लग रहा होता है कि यार हम टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे या हम कोई डिफरेंट फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज आफ्टर 5-6 ईयर्स इन इंडस्ट्री सारे कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना, अब मैं देखता हूँ तो मेरे दोस्त जो गेम डेवलपमेंट में भी स्टार्ट हुए थे वो भी तकरीबन उधर ही खड़े हैं, और जो टेक्निकल सपोर्ट में भी मेरा दोस्त है वो भी कहीं एक अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। तो सारे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। अगर आप फोर्सफुली डेटा साइंस को कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप कहीं लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आप गेम डेवलपमेंट में आप अच्छे हैं और आपको लगता है आपको फुल अबूर है फॉर एग्जांपल, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जाना चाहिए आप। I think his question is like very general because it's very common the people with career switch, they don't feel confident enough in the field that they switch to. So it's very common thing, and I don't think so. You should actually lose hope. You should keep on learning new things, and once you keep on learning, you gain confidence automatically. Shamil, could you please come on the cabin? So, Shamil ने पूरा roadmap to build AI venture जो है organize करवाया था, तो उसके लिए please थोड़ी तालियां बजाएं। A very big round of applause to the entire team who worked day and night for this event. And you can come here. Assalamualaikum. Thank you so much, guys. We have training programs. You guys can sign up in your domains which you want to learn and can learn about the thing you want to learn. And apart that, if you guys have any further questions, Numan was Edward or Isha will get after this. If you guys have any specific questions, you guys can ask. And thank you so much, guys, for this.